વંદે ગુજરાત. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નિયામક શ્રી આયુષની કચેરી આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ અંતર્ગત આયુષ વ્યાખ્યાનમાળાના આ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. વંદે ગુજરાત હેલ્થ ચેનલ અંતર્ગત આપણે હોમિયોપેથિક સારવાર અંગેના વિવિધ વિષયોને લઈને લોક જાગૃતિનું કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. આજે બુધવારનો દિવસ અને આ આયુષ વ્યાખ્યાનમાળામાં હોમિયોપેથિક સારવાર વિશે વાત કરવાનો દિવસ. આજના આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ તે પૂર્વે આપણે પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ કે આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આપણે હોમિયોપેથીની ઉપયોગિતા જે વિષયને લઈને જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ તે જન જન સુધી પહોંચે. સાથે સાથે આપણે એ પણ પ્રાર્થના કરીએ કે આજના આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત હોમિયોપેથિક સારવારની ઉપયોગિતા વિશે જાગૃતિ કેળવીને લોકો પોતાના અને પોતાના પરિવારજનો માટે હોમિયોપેથીનો વધુને વધુ ઉપયોગ કરે અને નિરોગી સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત કરે. સાથે સાથે આપણે એ પણ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હોમિયોપેથિક ચિકિત્સાને વરેલા તમામ હોમિયોપેથિક તબીબો એ હોમિયોપેથિક પદ્ધતિના સ્થાપક એવા ડૉક્ટર સેમ્યુઅલ હનીમેનના સિદ્ધાંતોને પોતાના જીવનમાં ચરિતાર્થ કરે અને હોમિયોપેથીના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે હંમેશા તત્પર રહે. દર્શક મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ ચિકિત્સા પદ્ધતિ હશે તેની સ્વીકૃતિ ક્યારે થઈ શકે કે જો એ સારવાર પદ્ધતિ છે એ જાહેર આરોગ્યમાં પોતાનું સ્થાન પ્રસ્થાપિત કરી શકે. વર્તમાન સમયમાં જાહેર આરોગ્ય માટે સારામાં સારી સારવાર પદ્ધતિ માટે હંમેશા વ્યક્તિઓની પણ દોડ હોય છે, સમાજની પણ દોડ હોય છે અને સરકાર પણ હંમેશા પ્રયત્નશીલ હોય છે કે એવી કઈ સારવાર પદ્ધતિ છે કે જેના દ્વારા જાહેર આરોગ્યને વધુ સુદૃઢ સુસ્વસ્થ કરી શકાય. અને આ માટે જ સરકારશ્રી દ્વારા પણ તમામ પ્રકારની જે સારી કહી શકાય એવી ચિકિત્સા પદ્ધતિઓને સરકાર પણ ખૂબ જ સારી રીતે મદદ કરતી હોય છે અને તેના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે સરકારશ્રી દ્વારા પણ ખૂબ પ્રયત્નો થતા હોય છે. અને સાથે સાથે એ ચિકિત્સા પદ્ધતિનું પણ એટલું દાયિત્વ બને છે કે તેણે પણ જાહેર આરોગ્યમાં પોતાની જે ઉપયોગિતા છે એને સ્વતંત્ર રીતે પ્રસ્થાપિત કરવી જોઈએ. દર્શક મિત્રો, આ માટે જ આજે આપણે જે વિષય અંતર્ગત વાત કરવાના છીએ તે હોમિયોપેથિક ચિકિત્સાની જાહેર આરોગ્યમાં ઉપયોગિતા કેવી રીતે પ્રસ્થાપિત કરી શકાય અથવા તો એવા કયા કયા પાસા છે કે જે હોમિયોપેથિક સારવારની ઉપયોગિતા છે એ જાહેર આરોગ્યમાં પ્રસ્થાપિત કરવા માટે ખૂબ જ અગત્યના છે. આપણે સૌ એ પણ જાણીએ છીએ કે વર્તમાન સમય કે જે કોવિડ પછીનો સમયગાળો છે તેમાં જાહેર આરોગ્ય સામે અવનવા પ્રકારના પડકારો સર્જાયા છે જે ભૂતકાળમાં કદાચ એટલા મોટા પ્રમાણમાં જોવા નહોતા મળ્યા. અને ઘણીવાર એવું પણ ચર્ચામાં જોવા મળે છે કે અમુક પ્રકારના પડકારો છે એ કદાચ લાંબા ગાળા સુધી જોવા મળે અથવા તો ઘણા સમય પછી એ પ્રકારના પડકારો પણ નિર્માણ પામે એવા પણ અત્યારે કેટલાક અભ્યાસો દર્શાવે છે. તો આપણે સૌએ એ બાબતો માટે તત્પર રહેવું જોઈએ, તૈયાર રહેવું જોઈએ. લોકો પણ જો જાગૃત થાય તો લોકો પણ આ પ્રકારની જ્યારે સમસ્યા ઉપસ્થિત થાય ત્યારે પોતાના અને પોતાના પરિવારજનો માટે હોમિયોપેથિક સારવારને અપનાવી શકે અને હોમિયોપેથિક ચિકિત્સાને વરેલા એવા હોમિયોપેથિક તબીબો જો જાગૃત હોય તો જ્યારે આ પ્રકારના પડકારો તેમને જોવામાં આવે તો તરત જ તેઓ હોમિયોપેથિક સારવાર દ્વારા સ્વસ્થ સમાજના નિર્માણ માટે પ્રયત્નશીલ થઈ શકે. દર્શક મિત્રો, આજે આ વિષય હોમિયોપેથીની જાહેર આરોગ્યમાં ઉપયોગિતા તે માટે વાત કરવા માટે તેના અંગેની જાગૃતિ માટે આપણે સ્ટુડિયોમાં જેમને આમંત્રિત કર્યા છે તે ડૉક્ટર અભિજીત ચેટર્જી સાહેબ, પોતે પ્રોફેસર અને હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ મેટરિયા મેડિકા, સુમનદીપ હોમિયોપેથિક મેડિકલ કોલેજ વડોદરા ખાતે પોતાની સેવાઓ આપી રહ્યા છે. પોતાના 15 વર્ષ કરતાંના વધારેના ક્લિનિકલ એક્સપિરિયન્સ અને 12 વર્ષ કરતાં વધારેના શૈક્ષણિક અનુભવ દરમિયાન તેમણે ખૂબ સારા કાર્યો કર્યા છે. પોતાનો અંડર ગ્રેજ્યુએટ સ્નાતક કક્ષાનો અભ્યાસક્રમ છે એ તેમણે બર્દવાન યુનિવર્સિટી પશ્ચિમ બંગાળમાંથી પૂરો કરેલો હતો અને તેમનો અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમ છે એ તેમણે ફાધર મુલર હોમિયોપેથિક મેડિકલ કોલેજ મેંગ્લોર ખાતેથી પૂરો કરેલો હતો. તેઓએ પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કલકત્તા ખાતેથી શરૂ કરી અને ત્યાં તેમણે 7 વર્ષની પોતાની પ્રેક્ટિસ પણ કરેલી હતી અને ત્યારબાદ તેઓ સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં રામકૃષ્ણ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ રાજકોટ ખાતે પોતાની સેવાઓ એક કન્સલ્ટન્ટ હોમિયોપેથિક તરીકે તેમણે આપી હતી અને આ દરમિયાન તેમણે ખૂબ જ ચેરિટેબલ કાર્યો પણ કરેલા છે જેમાં તેમના ક્લિનિકલ એક્સપિરિયન્સ ખૂબ જ બહોળા પ્રમાણમાં વિકસિત થયેલ છે. પારિવારિક તેમની હોમિયોપેથિક ચિકિત્સા, તેમનો સમગ્ર પરિવાર છે એ હોમિયોપેથિક ચિકિત્સાને વરેલો છે અને
49 વર્ષ કરતાં વધારે સમયથી તેમનો પરિવાર છે એ હોમિયોપેથિક ચિકિત્સામાં પોતાનું યોગદાન આપી રહ્યો છે. વર્તમાન સમયે પણ તેમનું જે પારિવારિક હોમિયોપેથિક ચિકિત્સા કેન્દ્ર બંગાળ ખાતે ચાલી રહ્યું છે તેના ઓનલાઈન સંચાલક તરીકેની પોતાની સેવાઓ તેઓ આપી રહ્યા છે. સાહેબનું આજના કાર્યક્રમમાં આપણે ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ. તેઓ આજે આપણને આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત માર્ગદર્શન આપવા માટે ઉપસ્થિત થયા છે અને સાહેબ પાસેથી આપણે સૌપ્રથમ એક પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા હોમિયોપેથીની જાહેર આરોગ્યમાં ઉપયોગિતા વિશે શું શું જાણવું જરૂરી છે, કેવી રીતે સમજી શકાય તે અંગે માર્ગદર્શન મેળવીશું અને ત્યારબાદ આપણી પાસે કેટલાક આ અંગેના પ્રશ્નો પણ છે. દર્શક મિત્રોને પણ વિનંતી છે કે જો આપને આજના આ કાર્યક્રમને લગતા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપ અમને આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત પૂછી શકશો. આપણા જે નિષ્ણાત વક્તા છે તે આપને આ કાર્યક્રમ દરમિયાન જ આપના પ્રશ્નોનો ઉત્તર પણ આપશે, જેથી કરીને આપના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરી શકીએ. ફરી એકવાર સાહેબ, ડૉક્ટર અભિજીત ચિરડે સાહેબ, આપનો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને આપને વિનંતી કરું કે આપનું પ્રેઝન્ટેશન આપ સાહેબ શરૂ કરો. नमस्कार. आज का जो टॉपिक है हेल्थ केयर सेक्टर में होम्योपैथी, गुजरात हेल्थ केयर सेक्टर में होम्योपैथी का कैसे करके उपयोगिता और इसका काम कैसे करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं विथ अवेयरनेस ऑफ नॉर्मल पर्सन. ये शुरू करने से पहले मैं हेल्थ सेक्टर के बारे में, गुजरात हेल्थ सेक्टर के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देना चाहता हूँ. देखिए, गुजरात 33 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है. एक लंबा सा कोस्टल एरिया है जहाँ से इंडिया से सबसे बड़ा कोस्टल एरिया. और अगर आप मैप के ऊपर ध्यान दें तो इतना वर्सेटाइलिटी लोगों के अंदर, समाज के अंदर, उनका लाइफस्टाइल में हर जगह पे देखने को मिल रहा है. अभी देखिए, हेल्थ सेक्टर में क्यों मैं इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस और ध्यान देने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि होम्योपैथी जो चिकित्सा है वो एक पर्सन का होलिस्टिक अप्रोच है. वो देखने के लिए हम लोग को पर्सन का कहाँ से वो रहते हैं, कैसे करके वो क्या काम करते हैं, दीज पार्ट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट. गुजरात का हेल्थ सेक्टर को अगर हम लोग देखें तो PHC 1477 PHC है, CHC 345 है, सब सेंटर 9231 है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है एंड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स 30 है एंड होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अराउंड 40 आज के डेट में जो इस साल में परमिशन हो गया है. तो अभी अगर ये हेल्थ स्ट्रक्चर एट प्रेजेंट गुजरात में है और उसके अनुसार गुजरात में हेल्थ स्टेटस हम लोग बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा है बहुत सारा स्टेट के अगर कंपेयर करें तो. इस स्लाइड में हम लोग पहले थोड़ा देख लिए लास्ट 2 डिकेड्स में हेल्थ सेक्टर में क्या क्या परिवर्तन आया है. अगर ये जगह पे ध्यान दें, 1990 ऑनवर्ड्स उस टाइम में कम्युनिकेबल डिजीज़, जहाँ पे इन्फेक्शस डिजीज़ वॉज मोर प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा होता था. क्यों? कारण उस टाइम में हाइजीन के ऊपर नॉर्मल पर्सन का नॉलेज ज़्यादा नहीं था. हम लोग नॉर्मली कम्युनिकेबल डिजीज़ और ये जगह पे इन्फेक्शस डिजीज़ के ऊपर ज़्यादा इन्फेक्टेड होते थे. डायरिया, कॉलेरा, डेंगू टाइप ऑफ डिजीज़ सबसे ज़्यादा होते थे. देखिए, ये डिजीज़ फैक्टर्स तब जो हेल्थ स्ट्रक्चर था, हेल्थ का स्ट्रक्चर था गुजरात में, वो जगह पे ये डिजीज़ के साथ, ये पैरामीटर के साथ फाइट करना एक बात था. धीरे धीरे दूसरे दशक में जब हम लोग एंट्री लेते हैं 2019 का देखते हैं, उस जगह पे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आर मोर. थोड़ा मैं विश्लेषण करूं व्हाट आर द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. देखिए, 2019 और 2000 दशक में अगर हम लोग देखते हैं तो इस जगह पे लो पर्सन्स मेनली वर्कहोलिक, लोगों का काम के वास्ते उनका टेंशन, उनका मानसिक प्रेशर ज़्यादा है एंड खाने का टाइम का ठीक नहीं है.
तो नॉर्मल लाइफस्टाइल जो होना चाहिए एक शरीर को ठीक रखने के लिए, वो चीज़ ये 2019 ऑनवर्ड्स ये इस चार्ट में इसका रिफ्लेक्शन हम लोग को मिल रहा है. सो लाइफस्टाइल डिजीजेस आर मोर प्रोमिनेंट फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स. ये जगह पे इस्चेमिक कार्डियक डिजीज, COPD, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. लाइफस्टाइल को अगर हम लोग मेंटेन कर सकते हैं तो ये जगह पे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, ये डिजीज़ को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं. ये चीज़ ही इसके ऊपर ही गुजरात का परिकाठामो जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, एक पैरामीटर्स है, ये स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है. एंड टाइप 2 डायबिटीज़ आर वेरी प्रोमिनेंट अभी गुजरात में. तो व्हाट आर द चैलेंजेस? ये तो 2 दशक हो गया. 2 दशक के बाद हम लोग ने कोविड देखा. कोविड के कारण सारा देश, होल वर्ल्ड को सफ़र कर रहे थे. ये हम लोग ने देखा, हम लोग ने एक्सपीरियंस किया. हेल्थ सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में क्या चेंजेस आया है तब हम लोग सब भूल गए थे. और डेली न्यूज़पेपर में ये भी आ रहा था, कोई डिजीज़, हार्ट अटैक भी इतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना कोविड में लोग गुजर जाते थे. क्या था ये कोविड? एंड आफ्टर कोविड ये देखा गया है जो लॉट्स ऑफ चेंजेस हेल्थ सेक्टर में आ गया है. स्पेशली ये चीज़ को हम लोग हेल्थ चैलेंजेस बोलते हैं. हेल्थ चैलेंजेस फॉर अस, फॉर डॉक्टर्स. तो ये जगह पे मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ. देखिए, आफ्टर द कोविड पीरियड 1920-21, बुखार, सर्दी खांसी, डायरिया, जो डिजीज़ पहले था वो सब एक ही है, लेकिन उसका सिम्टम चेंज हो गया है. नॉन स्पेसिफिक सिम्टम आ गया है. जो मेडिसिन पहले काम करता था अभी उतना काम नहीं कर रहा है ये जगह पे. एंड एक एग्जाम्पल की तरफ बोल रहा हूँ. ये जगह पे हाइपरटेंशन, नॉर्मली पहले हम लोग क्या जानते थे, हाइपरटेंशन होने के लिए उम्र क्या है, 40 से 40 के ऊपर 50 में हाइपरटेंशन होता था. लेकिन अभी एक 18 साल के लड़का लड़की को हाइपरटेंशन हो रहा है, वो भी अनकंट्रोल. पता नहीं उसका वजह क्या है. ब्लड पैरामीटर जब करने के लिए जाते हैं सब ब्लड पैरामीटर नॉर्मल होता है, लेकिन वो सफ़र कर रहे हैं. सो ये हम लोग के लिए एक चैलेंज डेवलप हुआ है. साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स जहाँ पे मन के साथ शरीर का, मन में अगर कोई ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी रहता है, वो शरीर के अंदर नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है, नॉर्मल जो फंक्शन है, उसमें चेंजेस लेके आता है. और ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया है. प्रोबिट दैट ऑल्सो ए चैलेंजेस फॉर अस. अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी. अभी छोटे छोटे बच्चे भी स्ट्रेस्ड, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स. जो मेडिसिन जो उम्र में होना चाहिए था वो चीज़ अभी नहीं हो रहा है. देखिए, पहले क्या होता था, हर रोग का एक उम्र होता था, एक एज होता था जो मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है. ये उम्र में ये डिजीज़ होता है. लेकिन अभी ऐसा नहीं है. अभी कहीं पर भी कोई भी डिजीज़ हो सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पैथीज. पहले हम लोग को ये चीज़ का कारण जानना चाहिए, किसके साथ हम लोग काम करने जा रहे हैं. मेडिसिन तो बाद में आएगा. इनफर्टिलिटी ऑल्सो इंक्रीज. हार्मोनल चेंजेस हैपन. जो पीरियडिकल डिसफंक्शन, प्री मेनोपोजल सिंड्रोम, जो प्री मेनोपोजल सिम्टम्स जो 45-50 में आना चाहिए, अभी 35-32 में कहीं कहीं में देखने को मिल रहा है. हार्मोनल फंक्शन देखा जाए तो मोरलेस नॉर्मल. ये चैलेंजेस है अभी डॉक्टर के सामने. ये चैलेंजेस है, और हम लोग के सामने अगर ये चैलेंजेस आता है तो इनडायरेक्टली वो हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी इफेक्टेड होता है. देखिए, पोस्ट कोविड हेल्थ
चैलेंजेस में और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ, दैट इज़ द डिजीज़ प्रोग्रेस। कोई भी डिजीज़ हो, हर डिजीज़ का एक प्रोग्रेस होता है, एक शुरुआत होता है और उसका एक एंडिंग होता है। तो दैट इज़ द प्रोग्रेस। ये जगह पे मेडिकल साइंस के पास, डॉक्टर के पास कोई भी जगह पे पेशेंट आ सकता है। जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ लेके कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं कि 10 साल से डायबिटीज़ में हूँ, दवाई ले रहा हूँ, अभी डॉक्टर आप देख लीजिए। कोई बोलता है 6 महीने से पहले शुरू हुआ है, कोई बोलता है कि मुझे पता ही नहीं था, मेरा आज 60 साल उम्र है, 2 दिन पहले पता चला। तो शुरुआत कहीं से हुआ था और धीरे धीरे ये चीज़ को हम लोग डिजीज़ प्रोग्रेस बोलते हैं। तो ये डिजीज़ प्रोग्रेस एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ द डिजीज़, ये आज के समय में, आज का डेट में पता करना, जानना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये अगर हम लोग नहीं जान पाएंगे, उसके लिए मैनेजमेंट, उसका क्या डाइट देना चाहिए, क्या चेंजेस करना चाहिए, क्या जनरल मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या स्पेसिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए, वो भी हम लोग कर नहीं पाएंगे। मैं लास्ट 5 साल राजकोट में रहा, तो उधर पे रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में और एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था। तो उधर का ओपीडी, अनपेरिफेरल ओपीडी में काम करता था। तो लॉट्स ऑफ पोस्ट कोविड टाइम में बहुत सारा सिम्टम्स, बहुत सारा डिजीज़ को सामने से देखा था। एंड इसीलिए एक ही डिजीज़ का जो कोविड से पहले उसका प्रेजेंटेशन और उसका चिकित्सा और कोविड के बाद का चिकित्सा में परिवर्तन वो सामने से देख पाया। तो मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के स्वरूप मोर देन 500 के से ऊपर पेशेंट हम लोग ने कैटेगोरिकली रामकृष्ण मिशन में पोस्ट कोविड का लास्ट 2 साल में, 1.5-2 साल में देखा है, जिसमें स्टीम डिजीज़ सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में आया है, उससे ज़्यादा रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स, एलर्जेटिक मैनिफेस्टेशंस, कोई भी ब्रोंकियल एस्मा, ब्रोंकिएक्टेसिस, सीओपीडी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, छोटा राइनाइटिस, ये चीज़, जॉइंट कंप्लेंट्स नॉर्मली रहते थे, लेकिन अभी सेम मेडिसिन प्रॉपरली यूज़ में उसका काम नहीं हो रहा है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोग को बोल चुका हूँ। एंड सौराष्ट्र रीजियन में रेनल स्टोन आर वेरी प्रोमिनेंट। हाइपरटेंशिव डिसऑर्डर्स, हाइपर एसिडिटी जो गैस का प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ भी बहुत प्रोमिनेंट को देखने को मिला है। एंड किसी किसी जगह पे प्रॉपर मेडिकेशन के बाद भी पेशेंट को हम लोग क्योर नहीं कर पाए, ये भी है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, नींद, हमारा एक ह्यूमन बीइंग का नींद नॉर्मली साइकोलॉजिकल स्टेट से जुड़ा हुआ होता है। एंड इसका विदाउट एनी साइकोलॉजिकल कॉज, विदाउट एनी टेंशन, पेशेंट बोलता है मेरे घर पे सब ठीक है, पैसा का कमती नहीं है, कोई शरीर में कोई दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सब लोग हम लोग साथ साथ रहते हैं, लेकिन नींद नहीं आता है, पता नहीं क्या कॉज है, कोई टेस्ट से हम लोग को पता नहीं चलता है। सो दीज आर द चैलेंजेस जो सामने से मैंने महसूस किया है विद द इंटरैक्शन। अभी आ जाइए होम्योपैथी में। होम्योपैथी मेडिसिन, आप लोग जानते हैं, एज पर द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, होम्योपैथी सेकेंड लार्जेस्ट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, पैथीज है जो वर्ल्ड वाइड ट्रीटमेंट होता है। एंड सिर्फ इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन एंड PhD तरह हम लोग पढ़ सकते हैं। टीचिंग का स्कूल्स इंडिया में है। तो होम्योपैथी लेके बहुत सारा क्वेश्चंस वर्ल्ड वाइड है। एंड ये जगह पे बाज़ार में बहुत मेडिसिन मिल जाता है, डिफरेंट टाइप का मेडिसिन मिल जाता है, जिसमें डाइल्यूशन
जो पानी की तरह देखने को होता है वो मेडिसिन भी होम्योपैथिक मेडिसिन है। जो थोड़ा डिफरेंट कलर का है मदर टिंचर, वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन है। और टैबलेट फॉर्म में मार्केट में जो मिलता है, जिसको हम लोग बायोकेमिक मेडिसिन बोलते हैं, वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन है। और एकदम छोटा छोटा गोली, जिसको हम लोग 50 मिलीसिमल्स बोलते हैं। ऑइंटमेंट भी है, जो नॉर्मली हाथ में चोट लगने के बाद, पैर में दर्द होने के कारण, मसल में घुटनों पे दर्द के टाइम पे भी हम लोग लगा सकते हैं। मैं बाद में जब डिजीज़ के ऊपर बात करूँगा तब मैं बताऊँगा कि कौन सा डिजीज़ में क्या क्या मेडिसिन, क्या ऑइंटमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में कैलेंडुला मार्केट में है, गन पाउडर भी मार्केट में है। सो इतना वेरिएशन होम्योपैथिक मेडिसिन में है, जो मार्केट में होम्योपैथिक स्टोर में जो भी शरीर का प्रॉब्लम है, जैसे भी शरीर का प्रॉब्लम है, उसके अनुसार हम लोग मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कुछ हो और कोई प्रॉब्लम हो जहाँ पे होम्योपैथी मेडिसिन गुजरात में नहीं मिलता है। हर जगह पे, हर छोटा डिस्ट्रिक्ट में भी, हर मेडिकल कॉलेज में भी, अभी तो 40 मेडिकल कॉलेजेस आ गए हैं, हर मेडिकल कॉलेज में भी सब मेडिसिन अवेलेबल है। तो कहीं पर भी हम लोग जाके होम्योपैथी चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। अभी होम्योपैथी के बारे में कुछ बातें कि होम्योपैथी तो एक मेडिकल साइंस है, जो ऑल्टरनेटिव मेडिकल साइंस है, जिसमें हम लोग एक पर्सन को पूरा देखने का कोशिश करते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। देखिए, सब लोग बोलते हैं, एक बच्चा होने के बाद सब लोग बोलते हैं कि बच्चा पापा की तरह देखने को मिला है, मम्मी की तरह उसका कुछ गुण है, दादाजी की तरह उसका कुछ गुण है, दादी की तरह वो दिखने को है। सो जैसे हम लोग मम्मी पापा के पास से क्वालिटीज़ और गुण लेके धरती पे आते हैं, ऐसे उनके पास से हम लोग डिजीज़ भी लेके आते हैं, रोग भी लेके आते हैं, रोग का जीवाणु लेके आते हैं। और आने के बाद वो क्या होता है, वो समाज में, वो सोसाइटी में, ट्रीटमेंट प्रोसेस में और डे टू डे लाइफ में वो मॉडिफाई होके एक डिजीज़ का आकार लेते हैं। सिंपल से वैसे एक बच्चा जन्माया, उसके अंदर में मम्मी पापा और दादा दादी के कहीं पे भी सर्दी काशी था, एलर्जी था। वो आने के बाद ऐसे कहीं पे जन्मा जहाँ पे ह्यूमिड वेदर है, लाइक बैंगलोर, जहाँ पे बारिश होता रहता है। तो ह्यूमिड वेदर के कारण उसका रेस्पिरेटरी कंप्लेंट नॉर्मली बढ़ गया। तो वो बच्चा, वो छोटा सा बच्चा, अगर वो एरिया में, एटमॉस्फेयर में बड़ा होता है, तो उसको सर्दी काशी का प्रवणता जो बोलते हैं, वो चीज़ बढ़ जाता है, जिसको हम लोग धात बोलते हैं। छोटे उम्र में दादी बोलते थे ना, उसका पेट का प्रॉब्लम होता है, उसका धात खराब है। ये चीज़ है धात। और कॉन्स्टिट्यूशन पूरा एक पर्सन का पूरा चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन। और जो चीज़ हम लोग फैमिली मेंबर के पास से लेके आते हैं और मॉडिफाई होता है, इधर आने के बाद ट्रीटमेंट भी मॉडिफाई कर देता है। अभी आ जाइए होम्योपैथी में और एक चीज़ हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, दैट इज़ माइज़म। इट इज़ टोटली ए थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट, तो भी मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। एक डिजीज़ का, हर डिजीज़ का एक छोटा आकार होता है। सोरा सिफिलिस साइकोसिस, हम लोग ये डिजीज़ का ये प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली आज जो डिजीज़ है वो चीज़ को बनाता है। सो दीज आर द इन्फेक्टिव एजेंट जो लेके हम लोग आते हैं धरती पे, और वो मॉडिफाई होता है एक डिजीज़ बनाने के लिए। वो पर्टिकुलरली डिजीज़ बाहर पे तो है, लेकिन हमारे अंदर में वो क्वालिटी होना चाहिए कि मुझे सर्दी हो, मुझे पेट का प्रॉब्लम हो। अगर मेरे अंदर में
एक पर्सन के अंदर में वो जीवाणु नहीं रहेगा, वो चीज़ हम लोग फैमिली से इनहेरेंट नहीं करेंगे, तो वो डिजीज़ के साथ हम लोग फाइट कर पाएंगे, वो डिजीज़ हमको इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, कोविड तो इतने लोगों को हुआ, आप देखिए कोई घर पे रह के ही सुस्त होगा, किसी को मेडिसिन ही नहीं लगा, किसी को 1-2 दिन में हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। एक ही घर में ऐसा पेशेंट मैंने देखा है, ऐसा फैमिली देखा है जहां पे 6-7 मेंबर एक साथ में अफेक्टेड है, लेकिन जो सबको देख रहा है उसको कोविड नहीं हुआ है। ये कॉन्सेप्ट देता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्सेप्ट देता है माइज्म। ખૂબ જ સુંદર સાહેબ આપે વાત કરી હોમિયોપેથીની જાહેર આરોગ્યમાં ઉપયોગિતા, અને આપ પોતે જ હોમિયોપેથીનો જ્યાંથી ઉદ્ભવ થયો કહી શકાય ભારત દેશની અંદર, એવી ભૂમિમાંથી આપ બંગાળમાંથી આવો છો. હોમિયોપેથી અત્યારે સૌથી વધારે પ્રચલિત હોય અને ખાસ કરીને જાહેર આરોગ્યમાં પણ હોમિયોપેથીને વધુને વધુ લોકો અપનાવે છે. એવી બંગાળ જેવામાંથી આપ આવી રહ્યા છો. આપ વાત કરો તો ચોક્કસ એની અસર તો લોકો પર પડે જ, અને લોકો પણ ગુજરાતની અંદર પણ કોવિડ પછીના સમયગાળામાં હોમિયોપેથીનો વ્યાપ ખૂબ જ સુંદર થયેલો છે. સાહેબ, આપની પાસેથી બીજી એક માહિતી મેળવવા ઈચ્છીશું, કારણ કે આપ પોતે જ એવી જગ્યાએથી આવો છો કે જ્યાં હોમિયોપેથી લોકો વધુને વધુ અપનાવતા હોય છે, અને મોટા પાયા પર હોમિયોપેથિક ડૉક્ટરો ખૂબ જ મોટાભાગના જે ભારતના પ્રસિદ્ધ હોમિયોપેથિક ડૉક્ટરો કહી શકાય એ પણ કલકત્તાથી આવેલા છે, અથવા તો કલકત્તામાં જ બધા પ્રેક્ટિસ કરતા હતા. તો પહેલાં પહેલું સાહેબ આપની પાસેથી એ જાણવું છે કે હોમિયોપેથી છે એ કયા કયા પ્રકારના કેસની સારવાર કરી શકાય છે? हाँ, बच्चे के पास अगर छोटे उम्र से देखा जाता है तो उसका धात के लिए हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन दे सकते हैं. जैसे एक छोटा बच्चा पेट का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, खाना प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, तो खाना अगर प्रॉपरली नहीं लेगा तो ग्रोथ ज़्यादा नहीं ठीक से नहीं होगा, उम्र के साथ साथ बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा, चलने के लिए डिले होगा. इस जगह पे होम्योपैथी मेडिसिन दे सकते हैं. सीपी चाइल्ड जहाँ पे डेवलपमेंटल एरर है, इस जगह पे होम्योपैथी मेडिसिन का बहुत अच्छा काम होता है, जहाँ पे करेक्शन, लेकिन याद रखिए 5 साल से पहले उसका चांसेस सबसे ज़्यादा है. जो बच्चा चल नहीं सकता है, आज आप होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के बाद वो चल सकता है. बंगाल में नहीं, राजकोट की बात है, रामकृष्ण मिशन में काम कर चुका हूँ. ये होता है जैसे उम्र बढ़ता जाता है, जिस जगह पे हार्मोनल बेटी लोग को जहाँ पे हार्मोनल डिसफंक्शन, पीरियड का इरेगुलरिटी होता है, इस जगह पे होम्योपैथी मेडिसिन काम करता है. बहुत सारा मम्मी पापा आते हैं, माता पिता आते हैं कि बच्चे का बुद्धि ठीक नहीं है, आप होम्योपैथी मेडिसिन के दे दीजिए, सामने एग्ज़ाम है. मत कीजिए ऐसा. बुद्धि हम लोग को भगवान दे के भेजता है. सबका कैपेसिटी एक टाइप का होता है. उसको नॉर्मल रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं. उसके लिए उसका धात जानना ज़रूरत है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन जानना ज़रूरत है. जेडियाटिक ओल्ड एज में हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं. मानसिक रोग में होम्योपैथी मेडिसिन हम लोग देते हैं, जहाँ पे टेंशन, जहाँ पे डिप्राइवेशन, फेलियर्स, पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. आज जानते हैं छोटे छोटे बच्चा कितना डिसीजन ले लेते हैं, क्राइम कितना बढ़ गया है, इंसिडेंट कितना बढ़ गया है. होम्योपैथी मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इस जगह पे काम करता है. एज में काम करता है, एज रिलेटेड डिजीज, जहाँ पे उम्र के कारण पीरियड का प्रॉब्लम महिला लोगों को, इस जगह पे होम्योपैथी मेडिसिन अच्छा. हार्मोनल सर्कुलेशन में काम करते हैं. जहाँ पे एज रिलेटेड मेल में, जहाँ पे प्रोस्टेटिक चेंजेस आ जाता है, इस जगह पे काम करता है. जनरल गैस, टेंशन, हाइपरटेंशन, हर जगह पे होम्योपैथी मेडिसिन का काम है. ખૂબ જ સુંદર સાહેબ આપે વાત કરી. હોમિયોપેથિક સારવારની ઉપયોગિતા છે ખૂબ જ બહોળા પ્રમાણમાં છે, અને ઘણી બધી તકલીફોની અંદર હોમિયોપેથિક સારવાર છે તે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. સાહેબ, બીજી એક બાબત છે જે આપની પાસેથી જાણવા ઈચ્છે છે
જે મોટે ભાગે જ્યારે જ્યારે હોમિયોપેથિક ડૉક્ટર પાસે દર્દી જતા હોય છે અને આવું સામાન્યતઃ લોકો જોતા હોય છે, આ પ્રશ્ન આપણને પ્રજામાંથી આવતા હોય છે, લોકોને આ મૂંઝવતા પ્રશ્નો છે, ત્યારે મોટે ભાગે એવું જોવા મળતું હોય છે કે હોમિયોપેથિક ડૉક્ટરના ટેબલ ઉપર ઘણી બધી બુક્સ પડેલી હોય છે અને ઘણીવાર દર્દી સાથે વાત કરતાં કરતાં પણ ડૉક્ટરો બુક્સ રિફર કરતા હોય છે, પુસ્તક જોતા હોય છે. તો આજ હોમિયોપેથીમાં જે દવા સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે એ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. नॉर्मली सब लोग बोलते कि एक होम्योपैथ के पास जाने के बाद घंटा लग जाता है. आप लोग क्या बात पूछते हैं इतना? सच्ची बात है, क्योंकि हम लोग एक पर्सन को जानने का कोशिश करते हैं. वो कहाँ से आया है. जैसे मैं गुजरात की मैप के बारे में बोल रहा था, छोटा छोटा जगह, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, उसका कल्चर क्या है, उसका फैमिली मेम्बर्स क्या है, क्योंकि डिजीज़ तो उधर ही डेवलप हुआ ना. और एटमॉस्फेयर में वो डिजीज़ का मैच्योरिटी हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ. तो अगर वो चीज़ हम लोग नहीं जानेंगे तो कैसे करके दवाई देंगे, कैसे करके कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रीट करेंगे. हम लोग डिजीज़ ट्रीट नहीं करते हैं. हैनीमैन ने बोला है, डोंट ट्रीट द सिम्टम्स, ट्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रीट द पर्सन, ट्रीट द इंडिविजुअल. तो एक पर्सन को जानने के लिए टाइम तो चाहिए. तो इसीलिए हम लोग को चाहिए एक पर्सन के साथ बात करके उसको पूरा, उसका क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पसंद है, सब कुछ जानना है. तभी जाके होम्योपैथी मेडिसिन हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं और वो सिलेक्शन जाके करेक्शन हो सकता है. सर, एक और बात आपसे जाननी थी कि ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयाँ होती है वो बहुत धीरे धीरे काम करती है. अगेन, ये लोगों को एक मानसिकता भी कह सकते हैं, कभी कभी अनुभव नहीं किया होने के कारण भी ये लोगों का अभिप्राय होता है कि होम्योपैथिक दवाई बहुत धीरे तरह से काम करती है, धीमी काम करती है, और इसी वजह से लोग होम्योपैथी को अपनाने में कहीं कहीं दूर हो जाते हैं, नहीं आते होम्योपैथी की तरफ. तो सर, आप इसको किस तरह से लोगों को समझाना पसंद करेंगे? एकदम सही बात है. देखिए, एक स्लो काम करता है और करना भी चाहिए. एक दिन में तो चेंज नहीं होता है ना. जो चीज़ हम लोग फैमिली के पास से लेके आए हैं, मान के चलिए 2 जनरेशन पहले ट्यूबरकुलोसिस था. आज जो बच्चे आए हैं उसके अंदर में जो सर्दी काशी का जो प्रकोप है वो ट्यूबरकुलोसिस टाइप का है. तो उसके अंदर में, इतना अंदर में 2 जनरेशन 100 ईयर्स से वो जाम्स है. एक दिन में कैसे जाएगा? आप ही सोचिए ना. अगर कोई डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ ये एकदम 1 महीने में ठीक हो जाएगा, कैसे करके ठीक हो रहा है, कैसे करके आपको पता चलेगा? इस ठंडी के टाइम में जो उनका जो इजीली जो ठंड लगने का जो प्रकोप है, नेक्स्ट टाइम में वो कम होगा, वो 50% कम हो जाएगा. नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में वो और कम हो जाएगा. तो धीरे धीरे इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू होगा और होके वो डिजीज़ जो है उसके साथ फाइट करेंगे. और एक दिन ठंड आएगा लेकिन आपका बच्चे को ठंडा नहीं लगेगा. तब इम्यूनिटी और कॉन्स्टिट्यूशन इतना ताकतवर हो जाएगा कि जो भी चेंजेस आए तो ये करेक्शन में तो टाइम तो लगेगा ही सर. अभी मैं ये बात करते करके थोड़ा डिजीज़ के बारे में बोलूँ कि नॉर्मली जब हम लोग क्लिनिक में जाते हैं तो सिंपल, छोटा बच्चा हो एक बड़े हो, एक्यूट डिजीज़ के अंदर फीवर, डायरिया एंड कफ, सर्दी काशी, पेट का तकलीफ़ और कफ बच्चे लोगों के लिए इज़ अ मोर कॉमन. कोई भी डिस्पेंसरी में जाइए, कहीं पर भी जाइए, मोहल्ले में पूछ लीजिए, तो फीवर के लिए होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है. फीवर के लिए पहले एक चीज़ बता दूं, बुखार को कम नहीं करना है. 102 अगर टेम्परेचर है, 102 में आपका बच्चा, आप कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं होगा. हमारा बॉडी मैकेनिज्म ही ऐसा है. आवर बॉडी मैकेनिज्म कैन कंट्रोल द फीवर. फीवर के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं, फीवर जिसके कारण आ रहा है उसके लिए होम्योपैथी मेडिसिन. सो बुखार के लिए जल्दबाजी मत कीजिए.
हम लोग के पास बहुत सारा मेडिसिन है, बेलेडोना है, फेरामफॉस है, रास्टक्स है, डालकामारा है, 100 से भी ज़्यादा दवाई है जिसमें फीवर कम हो सकता है। लेकिन फीवर को कारण को कम करने के लिए जो फिजिशियन है उससे आपसे बात करना पड़ेगा। क्यों फीवर आया? बारिश में 4 लड़का ने भीगा, एक को फीवर आया, एक को सर्दी हुआ, एक को बॉडी दर्द हुआ, फीवर नहीं आया, दूसरे को कुछ नहीं हुआ। ये डिफरेंस ही होम्योपैथी समझाता है हम लोग को। डायरिया, देखिए डायरिया मीन्स लूज मोशन। कहीं कहीं पे ये नॉर्मली होता है और कहीं कहीं पे बाहर खाने के कारण होता है। तो कारण का अगर हम लोग समझ ले तो इस जगह पे हम लोग दवाई दे सकते हैं। सर्दी काशी बच्चे लोगों के लिए होम्योपैथी में बहुत सारा अच्छा मेडिसिन है। नागबंद से लेके संबुकस नायग्रा दे सकते हैं, नक्स भूमिका दे सकते हैं, लाइकोबोडियम दे सकते हैं, पल्सिटिला दे सकते हैं। पल्सिटिला के नाम बोलूँ तो फीमेल रेमेडी इज अ वेरी गुड फीमेल रेमेडी। कोई भी उम्र पे पल्सिटिला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे पीरियडिकल प्रॉब्लम, जेडियाटिक रेमेडी। ओल्ड एज में एक ही चीज़ चाहिए, आज का दिन सुस्त रहना चाहिए। हाइपरटेंशन तो है, वो ठीक नहीं होगा एट द एज ऑफ 70 ईयर्स। डायबिटीज़ दवाई ले रहा हूँ, वो ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे ठीक रहना चाहिए। ये मुझे ठीक रहना चाहिए, इसके लिए होम्योपैथी मेडिसिन है। पेन कहीं पे भी, हाथ में चोट लगे तो भी पेन होता है, सर दर्द भी होता है, पेट में भी दर्द होता है, और कहीं पे साइकोलॉजिकल कारण भी दर्द होता है। पेन का उत्तर पेन किलर नहीं है। होम्योपैथी में भी पेन किलर है। पेन का उत्तर पेन किलर नहीं है। पेन का उत्तर कारण, जो उसके कारण पेन हो रहा है, वो चीज़ को समझना है। मेरा सर बोलते थे, पेन इज पेनफुल फॉर द पेशेंट बट इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द फिजिशियन। दर्द अगर नहीं रहेगा तो हम लोग को कैसे करके पता चलेगा कि किसके कारण दर्द हो रहा है, और कारण ही अगर मिट जाएगा तो उसका दवाई कैसे हम लोग देंगे। तो पेन को मत दवाइए, पेन के कारण फिजिशियन को ढूंढने के लिए उनको हेल्प कीजिए, इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा। अभी आ जाइए इमरजेंसी मेडिसिन। जो पहले एक क्वेश्चन आया था, जल्दी काम करता है होम्योपैथी मेडिसिन? हाँ, इस जगह पे बोलूँगा जल्दी काम करता है होम्योपैथी मेडिसिन। इसका जल्दी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। जैसे इधर पे मैंने 3 टिप्स आप लोग के लिए लेके आए हूँ। घर पे जो चीज़ हर घर पे होता है, छुरी से काम करते करते हाथ काट जाता है, बच्चे खेलते खेलते गिर जाता है, और रान्ना करते करते उधर पे जल जाता है। तो आर्निका कैलेंडुलर कैंथरिस, ये हम लोग होम्योपैथी में होम किट बोलते हैं। हर घर पे रखिए, हर दुकान में मिल जाएगा, हर मेडिकल कॉलेज में आपको होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा। आर्निका, जहाँ पे चोट लग गया है, बच्चे गिर गए हैं, साइकिल चलाते चलाते गिर गए हैं, ऊपर में जस्ट पानी से साफ करके लगा दीजिए, दर्द मिट जाएगा। बच्चे कल फिर चलने लगेंगे, खेलने लगेंगे, फिर लगेगा, फिर आर्निका लगाइए। कैलेंडुला, जहाँ पे शार्प छुरी से आप सब्जी काटते काटते कहीं पे शार्प काट हो गया है, बहुत खून बह रहा है, कैलेंडुला लगा दीजिए। कैंथरिस, जहाँ पे जल गया है, लेकिन माइंडेड इट इज़ अ फर्स्ट डिग्री बर्न। ज़्यादा होता है तो आपको नज़दीक हेल्थ सेंटर पे या हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। जहाँ पे दर्द होता है, जलन होता है, जलने के बाद कैंथरिस लगा दीजिए। पानी से मत धोइएगा, कैंथरिस लगा दीजिए, उस जगह पे काम आएगा। इन केस ऑफ द एक्सीडेंटल केसेस भी हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हुआ है। देखिए, ये इमरजेंसी कंडीशन के साथ में लिमिटेशन के बारे में भी थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ, बिकॉज एवरी साइंस हैव सम लिमिटेशंस, एंड एज ए फिजिशियन, एज ए होम्योपैथ, वी शुड एक्सेप्ट दैट। लिमिटेशन क्या है? लैक ऑफ क्वालिटी स्टाफ। एक इमरजेंसी कंडीशन में जहाँ पे हेड इंजुरी हुआ है, वी डोंट हैव दैट क्वालिटी स्टाफ जो इंटर्नशिप केयर यूनिट में जाके काम कर सकता है। होम्योपैथिक स्टाफ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ।
इस जगह पे लैकुना। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होम्योपैथिक हॉस्पिटल में इतना अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे एक बेड रिटन डेडली लास्ट स्टेज में फाइट करने के लिए पेशेंट को चाहिए। ये जगह पे हम लोग को लैकुना है। लैक ऑफ प्रूविंग ऑफ द रेयर मेडिसिन, रिसर्च के जगह पे बहुत मेडिसिन है, कोई फिजिशियन बोलता है ये मेडिसिन XYZ में हमको काम मिला है, लेकिन वो प्रूफ कहाँ पे है उसके लिए। दिस आर द लैकुना जो हम लोग को एक्सेप्ट करना है। नाउ आ जाते हैं क्रॉनिक डिजीज में। व्हाट इज क्रॉनिक डिजीज? जो नॉर्मली होम्योपैथ के पास पेशेंट सबसे ज़्यादा लेके आते हैं, जो डिजीज बहुत दिन से चल रहा है। डायबिटिक मेलाइटस लास्ट 10 साल से मैं सफ़र कर रहा हूँ। सर दर्द मेरा छोटे उम्र से है, अभी मेरा उम्र 30 ईयर्स है। जब भी दर्द होता था एक पेन किलर XYZ, कोई भी मेडिसिन कोई भी पैथी से, आज भी होता है। हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, दीज आर द क्रॉनिक डिजीज। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इमोशनल डिसऑर्डर्स, सिजोफ्रेनिक स्टेट, डिप्रेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन, पता नहीं आज क्यों खराब लग रहा है, रेगुलर सुबह उठने के बाद ही मुझे मन खराब हो जाता था, कोई काम करने का मन नहीं होता था। ये कंडीशन में क्या करना चाहिए? क्रॉनिक डिजीज, यस, होम्योपैथी में इसका आंसर है। सेम चीज याद रखिए, ये चीज हमारे पास आया कहां से? वी इनहेरिट दैट प्रॉपर्टी। कहां से? आवर पैटर्नल एंड मैटरनल साइड से। और जो मॉडिफाई हुआ है, एंड ये मॉडिफिकेशन को होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। सो फॉर क्रॉनिक डिजीज, यस, होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और ये ट्रीटमेंट हम लोग रेगुलरली करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एंड पोस्ट कोविड एरा में और पोस्ट कोविड टाइम में ये और एक बार प्रूफ कर दिया है कि जहाँ पे कोई भी मेडिसिन काम नहीं करता है, सो जस्ट फाइंड आउट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो धात को देखिए, वो पर्सन को देखिए और मेडिसिन दीजिए, और उसमें काम मिलता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन को और एक तरीके से आप लोग को समझाने का कोशिश करता हूँ। घर पे तो साइकिल सबका है, मोटरसाइकिल है, सर्विसिंग का ज़रूरत पड़ता है, ऑयलिंग का ज़रूरत पड़ता है। क्यों? जिस दिन ऑयलिंग होता है नेक्स्ट डे अच्छा तरीके से साइकिल चलता है। आवर बॉडी ऑल्सो ए मशीन जिसमें ऑयलिंग का ज़रूरत होता है। एंड होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नथिंग बट दैट ऑयल। इसके बारे में ही एक सेशन हो जाएगा, सो थोड़ा आगे चलूँ। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट पर्टिकुलरली इफेक्टिव है आज के टाइम में सबके लिए। जो आज का टॉपिक था, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस ऑफ होम्योपैथी एट गुजरात, इसके लिए मैं पहले बोलना चाहूँगा 35+5 मीन्स 40 होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं टोटल गुजरात में, डिस्ट्रिक्ट 33। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होम्योपैथिक कॉलेज के ऊपर गवर्नमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है, टोटल सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो हम लोग ने कोविड के टाइम में देखा था, कॉलेजेस हैं, इस जगह पे अवेयरनेस का ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस का ज़रूरत है, पेरिफेरल OPD का ज़रूरत है। एंड इन द प्रोफेशनल लेवल ऑल्सो उस कॉलेज के साथ टीचर जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, और उसके साथ उसका फैमिली जुड़ा हुआ है। आप देखिए 40 मेडिकल कॉलेज, एक 5.5 साल का ईयर एंड 100 करके बैच, कितना स्टूडेंट होगा और उसके साथ कितना फैमिली मेंबर हो सकता है। तो कहीं भी कॉलेज में कोई भी एक अच्छा काम हो जाए, एक प्रोजेक्ट हो जाए, वो चीज़ सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड मेडिकल स्टूडेंट लेवल ऑल्सो, फॉर द स्टूडेंट, उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अवर उनका लोकेलिटी। वो जहाँ पे जाते हैं, एक के मुंह से दूसरे के मुंह में ये चीज़ जा सकता है। एंड प्रोफेशनल इस अवेयरनेस में प्रोजेक्ट वाइज हम लोग
गवर्नमेंट के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान हम लोग ने काम किया था राजकोट में, स्टूडेंट को लेके स्वच्छ भारत अभियान किया था। एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं होम्योपैथिक अवेयरनेस हम लोग करने के लिए। ये इस टाइप पे हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं CHC, PHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सब सेंटर एंड होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में। एंड होम्योपैथिक कोई भी पेशेंट कहीं पर भी आता है, उस चीज़ को अगर आपके तरीके में कोई भी मेडिकल कॉलेज के लेवल पे कहीं पे काम ठीक से नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई लिमिटेशन आ रहा है, उसको शेयर कीजिए हायर लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि सब गवर्नमेंट लेवल पे ही होम्योपैथी डॉक्टर्स आर अवेलेबल। आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करके 2014 के बाद इंडिया में एस्टैब्लिश किया है। द इंटीग्रेटेड अप्रोच मीन्स स्वास्थ्य सबके लिए एक साथ, कोई भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग दूसरे सिस्टम का बेनिफिट ले सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये चीज़ हम लोग को जानना चाहिए, ये चीज़ हम लोग को मानना चाहिए। तो इसीलिए एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो आज हम लोग कर सकते हैं, दैट इज द टेलीमेडिकेशन, जो ऑलरेडी गुजरात में एस्टैब्लिश हो गया है हेल्थ सेक्टर में। दैट टेलीमेडिकेशन जिसके लिए ट्रेंड हो गए हैं स्टाफ, ये चीज़ हम लोग होम्योपैथी सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ फॉर हैंडलिंग एनी डिजास्टर बोल के नहीं आते हैं। वी नो हमारे पास मेडिसिन है, इमरजेंसी मेडिसिन है, बट वी डोंट नो हाउ टू अप्लाई, व्हाट टू अप्लाई। जो भी स्ट्रक्चर 20 बेडेड, 30 बेडेड, 40 बेडेड, 100 बेडेड हॉस्पिटल हमारे पास भी है, हर एक मेडिकल कॉलेज के पास भी है, लेकिन कौन सा जगह पे क्या अप्लाई करना है, दैट इज द लिमिटेशन। ये जगह पे हम लोग को काम करना पड़ेगा। एंड अवेयरनेस कैंपेनिंग धीरे धीरे सबके साथ बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके एक सुस्त भारत और होम्योपैथी का अवेयरनेस सबके अंदर में, सबके जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर, एक और छोटा क्वेश्चन था जो कभी कभी होम्योपैथी के सामने पूछा जाता है और थोड़ा लोगों में ये अभी भी कन्फ्यूजन जैसा बोल सकते हैं कि ऐसा होगा नहीं होगा या क्या ज़रूरत है इस चीज़ की होम्योपैथी में, वो है हॉस्पिटल या आईपीडी इंडोर फैसिलिटी। बराबर, आजकल आपने जैसे बहुत अच्छी बात बताई, होम्योपैथी में आज गुजरात के अंदर 40 से भी ज़्यादा कॉलेज चल रहे हैं और ये सब कॉलेज के अंदर हॉस्पिटल्स होती हैं। तो आपके हिसाब से किस तरह के मरीज पेशेंट्स होते हैं जिनको होम्योपैथिक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जा सकता है और एडमिट करके होम्योपैथी दवाई से उनको फ़ायदा दिया जा सकता है? अच्छा, ये जगह पे मैं थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ फादर मुलर का। फादर मुलर आईपीडी का, जहाँ पे बुखार के लिए भी पेशेंट आता था, क्रॉनिक सोरियासिस में भी पेशेंट आता था, माइग्रेन के लिए भी पेशेंट आता था, और ऐसे पेशेंट भी को भी हम लोग ने एडमिट किया है जिसको बहुत दिन ट्रीटमेंट करने के बाद वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द राइट मेडिसिन। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, होम्योपैथी में प्रॉपरली डायग्नोसिस मतलब पर्सन को, इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ी बात है, और इसके लिए एडमिट करना। सो हॉस्पिटल मतलब रेस्ट, हॉस्पिटल मतलब ट्रीटमेंट। कभी कभी रेस्ट एंड आइसोलेशन भी मेडिसिन का काम कर जाता है, प्लेसेबो इफेक्ट। सो ये जगह पे भी तो हॉस्पिटल हम लोग बहुत सारा चीज़ के लिए, एक्यूट मैनेजमेंट के लिए, डायरिया, फीवर, काफ एंड कोल्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्रॉनिक पेन जहाँ पे पेशेंट बार बार आना दिक्कत है, इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्रॉनिक इलनेस जहाँ पे कंटिन्यूअस वोमिटिंग हो रहा है, जहाँ पे कॉज आइडेंटिफाई हो गया है, कारण आइडेंटिफाई हो गया है, बट पेशेंट को बार बार लेके आना जाना इज नॉट पॉसिबल, इस जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो
for chronic case also, for acute case also, and for terminal cases also, if the infrastructure permit. For terminal cases भी होम्योपैथी का बहुत अच्छा काम है. Try to remember इपिकक, जिस जगह पे डेथ रैटलिंग के बारे में बोला गया है. तो कार्बोवेज, साइनोसिस, जहां पे लास्ट स्टेज के बारे में. बट फिर एक बार मैं बोलना चाहता हूं कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो देयर इज नो लिमिट फॉर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. इतना सारा मेडिसिन है, कहीं पर भी कोई भी मेडिसिन हम लोग यूज कर सकते हैं. बट प्रॉपर स्टाफ, एडुकेटेड स्टाफ, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर मेडिसिनल नॉलेज विथ रिसर्च, कंप्लीट रिसर्च पेपर, ये अगर रहता है तो वी कैन हैंडल एनी केसेस. बहुत बहुत अच्छा सर. एक और क्वेश्चन कि आपके हिसाब से होम्योपैथी का जब कोई डॉक्टर होता है वो ट्रीटमेंट करता है, तो व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग द लिमिटेशंस? आपको क्या क्या मर्यादाएं है जो होम्योपैथी की, जो डॉक्टर को ध्यान में रखनी चाहिए? कि भी ऐसा है तो आपको थोड़ा, यू नीड एज एन एडजुवेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, यू नीड एन ऑक्सिलरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट विद दिस. आपका कोई ऐसा कोई सुझाव, सजेशन हो? देखिए, जैसे बहुत सारे लोग आके बोलते हैं अभी लाइफस्टाइल डिजीज़ की ले लीजिए, जहाँ पे बहुत दिन से डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, जहाँ पे बहुत दिन से हाइपरटेंशन का मेडिसिन चल रहा है. तो एक ही चीज़ बोलता हूँ कि इंटीग्रेटेड अप्रोच, राइट वे वी कैनॉट स्टॉप. जो लास्ट 10 साल से एक पेशेंट जो भी XYZ मेडिसिन लेके, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, जो भी मेडिसिन लेके वो तो अच्छा था, तो वो चीज़ वन शॉट में मैं होम्योपैथ हूँ इसीलिए कल से बंद कर दूंगा ओनली होम्योपैथी में. यस, वी हैव होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लेकिन अटेस्टेड बंद नहीं कर सकते हैं, उसके सिस्टम के ऊपर इफेक्ट आता है. तो हमको सबको लेके चलना पड़ेगा. दैट इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच. ये जगह पे वी नीड टू हैंडल द पेशेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस. वो टर्मिनल स्टेज में है, वो पेशेंट फाइट कर सकता है. इनिशियल 2 दिन शुरू किया है और लेने के बाद ही पेट में जलन या वोमिटिंग टाइप का शुरू हो गया है. सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड द सिचुएशन हम लोग ये चीज़ को जज कर सकते हैं. बहुत बढ़िया सर. सर, आज का जो आपने सेशन पूरा होम्योपैथिक जो चिकित्सा है उसकी पब्लिक हेल्थ में क्या क्या यूटिलिटी है उसकी जो आपने बात की, अगर आप पूरा ब्रीफ में बताना चाहे इन शॉर्ट, देन हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द होल इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योपैथी? कैसे हम समझ सकते हैं? देखिए, टोटल होम्योपैथी मैं WHO का डेफिनेशन ही रिपीट करना चाहता हूँ. इट इज़ अ अल्टरनेटिव सपोर्टिव मैनेजमेंट, मेडिसिनल मैनेजमेंट जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है. एंड ये चीज़ एक पर्सन को सुस्त रखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज होम्योपैथी एक जगह पे ऐसे करके भी आ रहा है जहाँ पे मुझे कुछ नहीं है, मुझे अच्छा रहना है. आई नीड इज़ अ सर्विसिंग, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट. आई नीड ए मेडिकेशन, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे हर दिन में ठीक रहना है. आई नीड ए मेडिकेशन. ये जगह पे होम्योपैथी मेडिसिन काम करता है. सर दर्द है, बुखार है, उसके लिए तो है ही. दिस इज अ एडिशनल पार्ट जो होम्योपैथी मेडिसिन डे टू डे लाइफ में सबके साथ जुड़े गए हैं. और एक बच्चे को देखिए ना, छोटे उम्र से धीरे धीरे बड़ा हो रहा है. तो हर जगह पे, हर लेवल पे होम्योपैथी मेडिसिन हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. एनी, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी સ્ટેજ ઓફ ડિઝીઝ. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ સાહેબ આપનો. આપે આજના આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત હાજર રહી અને હોમિયોપેથિક સારવારની જાહેર આરોગ્યમાં ઉપયોગિતા તે અંગે ખૂબ જ સુંદર વાતો કરી. આપનો વિશાળ ક્લિનિકલ અનુભવ અને શૈક્ષણિક અનુભવ
તે અંતર્ગત આપે હોમિયોપેથિક સારવાર છે એ કઈ કઈ પરિસ્થિતિમાં સ્વાસ્થ્ય સંબંધી કયા કયા પ્રશ્નોમાં ઉપયોગી થઈ શકે તે અંગેની સુંદર વાત કરી. હોમિયોપેથી અંગેની કેટલીક જે માન્યતાઓ કહી શકાય, ખાસ કરીને હોમિયોપેથિક દવા ધીમી કામ કરે છે. ત્યારબાદ હોમિયોપેથિક દવા કેવી રીતે પસંદ કરવામાં આવે છે, ઘણા લોકોને મૂંઝવતા પ્રશ્ન હોય છે, તેમાં આ ખૂબ જ અગત્યના પ્રશ્નો છે. ઘણીવાર લોકો વિચારતા હોય છે કે હોમિયોપેથિક સારવાર પસંદ કરવામાં કેમ આટલો બધો ટાઈમ લાગે છે, ડૉક્ટર આપવામાં કેમ આટલો બધો સમય લગાડે છે. તો આ સૌ કોઈને મૂંઝવતો પ્રશ્ન છે, તેની પણ આપણે ખૂબ જ સુંદર વાત કરી. સાથે સાથે આપણે હોમિયોપેથિક દવા કેમ ધીમી કામ કરે છે એને કેવી રીતે સમજાવી શકાય કે ખરેખર ધીમી કામ નથી કરતી, પરંતુ રોગને મૂળમાંથી મટાડવાનું કામ કરે છે. એટલે ઘણીવાર એવું આપણને લાગતું હોય છે કે હોમિયોપેથિક દવા ધીમી કામ કરે છે. હોમિયોપેથિક દવાની કામ કરવાની પદ્ધતિ કેવી રીતની છે, કેવી પ્રક્રિયા છે, અને કયા કયા પ્રકારના રોગોની અંદર ખૂબ જ જો ત્વરાએ થયેલા જે રોગો હશે અથવા તો જે એક્યુટ કહી શકાય એવા રોગોમાં હોમિયોપેથિક સારવાર કેવી રીતે કામ કરે છે તેની પણ આપણે ખૂબ જ સુંદર વાત કરી. અને જે ક્રોનિક લાંબા ગાળાની જે બીમારીઓ હશે તેમાં પણ હોમિયોપેથિક સારવારની ભૂમિકાની આપણે વાત કરી. સાથે સાથે આપણે એ પણ વાત કરી કે હોમિયોપેથિક ચિકિત્સાને આપણે જો વ્યાપક પ્રમાણમાં લોકો સમક્ષ લઈ જવી હોય અને હોમિયોપેથિક સારવારનો સ્વીકૃતિ લોકોમાં વધે તે માટેના પ્રયત્નો કરવા હોય તો કેવા પ્રકારના પ્રયત્નો કરી શકાય તે અંગેની પણ આપણે સુંદર વાત કરી. અને આપણે એક સુંદર શબ્દનો પણ પ્રયોજન કર્યું, તે છે ઇન્ટિગ્રેશન, એટલે કે સંયોજન. હોમિયોપેથીનું સંયોજન છે અત્યારે વર્તમાન કારણે જે પ્રણાલીગત ચિકિત્સા ચાલી રહી છે એની સાથે જો હોમિયોપેથિક સારવારનું સંકલન કરવામાં આવે, એને પ્રયોજવામાં આવે સાથે સાથે જ, તો હોમિયોપેથિક સારવારના પરિણામો ખૂબ જ સારા મળી શકે છે. આપણે જોયું છે છેલ્લા 2 વર્ષ પછીના સમયગાળામાં લોકોએ હોમિયોપેથીને વધુને વધુ સ્વીકારેલી છે અને હોમિયોપેથીના આવા સંકલિત અને સંયોજનપૂર્ણ ઉપયોગને કારણે ઘણા સારા પરિણામો પણ જોવા મળ્યા છે. આગામી સમયમાં આ અંગેના ઘણા બધા સંશોધનો અને અભ્યાસો પણ કદાચ બહાર પ્રકાશિત કરવામાં આવશે, જેના દ્વારા હોમિયોપેથિક ઉપયોગિતાની આપણે વધુને વધુ સમજી શકીશું. તો આપે ખૂબ જ સાહેબ આ સમગ્ર વિષય પરત્વે ખૂબ જ સુંદર માર્ગદર્શન આપ્યું, તેના માટે આપનો ફરીથી ખૂબ ખૂબ આભાર. સાથે સાથે નિયામક શ્રી આયુષ, તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે જેના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન કરીએ છીએ. નાયબ નિયામક તાલીમ અને સંશોધન કે જેના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણાથી આપણે સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન કરીએ છીએ. દર્શક મિત્રો, આપ સૌનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપ હંમેશા અમારા કાર્યક્રમમાં હાજર રહી અમને નિત નવા પ્રશ્ન પૂછી અને નવા વિષય સાથે આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થવા માટે પ્રેરિત કરતા હો છો. તો આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આવતા સપ્તાહમાં એક નવા વિષય સાથે આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈશું. ત્યાં સુધી નમસ્કાર. જય જય ગરબી ગુજરાત.